उनकी उपस्थिति पुनः आप सभी का स्वागत। शिक्षा, संस्कृति, संस्कार सभी की बड़ी विशद वार्ता हुई बड़े गहन रूप में, और प्रोफेसर मोनी ने तो ऋषि संस्कृति में कृषि का भी आधार जोड़ डाला। तो सनातन भारत की ऋषि और कृषि संस्कृति का ऐसा अद्भुत योग जो आज सभागार में हुआ, वह संभवतः जिनकी पुण्यतिथि को आज हम मना रहे हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऐसी चेतना, तो उन्हीं के कारण यह सहज स्फूर्त भाव आज सभी आप मनीषियों ने यहाँ प्रकट किए। सनातन भारत में एक बात यह भी कही जाती है कि एकम सद विप्राह बहुधा वदंती। तो ये वर्ष 2024 का पेरिस 2024 के ओलंपिक गेम्स का भी है, और इन्हीं सब शिक्षा संस्कार के मूल्यों को एक फ्रेंच मनीषी ने सोचा, विचारा और मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की संकल्पना कर दी। और किस प्रकार से फ्रांस का यह देश, जहां से पियरे दे कुर्बटिन ने मॉडर्न ओलंपिक्स की संकल्पना की, तो ओलंपिज्म की जो स्पिरिट है उसको कैसे विश्व में प्रसारित किया जाए, उसके लिए वो लगे रहे। एंड एवरी 4 years we see now the legendary Olympic games all across, and today we have the great good fortune of having 3 eminent sports personalities out here and whom we wish to felicitate. I would request our Professor Premrat sir to please come to hand over these felicitations. Professor Khandal to also join in. आप दो हमारे आज के मुख्य मनीषी जो कि आज सभी को सम्मानित करें, निवेदन है। और I would also request our chairperson श्री R.K. Vyas sir to also join। एक त्रिमूर्ति का प्रणयन हो जाए इस त्रिमूर्ति के माध्यम से। सर it will happen। बोलता भी स्वास्थ्य। The goal of Olympism is to place sports at the service of the harmonious development of humankind, with a view to promoting a peaceful society concerned with the preservation of human dignity। तो जितनी इनोबलिंग बातें हैं इस ओलंपिज्म में रखी गई। मैं और निवेदन करना चाहूंगा हमारे विशिष्ट अतिथि श्री अशोक कुमार सर का, जो कि कुलपति हैं हरियाणा राज्य की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की, कि वो भी यहाँ पर अपने गुरु प्रोफेसर प्रेमरत के साथ खड़े हो जाएं। और दो बड़े स्पेशल इंस्टीट्यूशंस, वी हैव द ग्रेट गुड फॉर्चून टू फेलिसिटेट the National Sports University as a Pierre de Coubertin Olympian Institute for furthering Olympism। तो मैं निवेदन करूंगा सभी हमारे मनीषियों से, स्पेशली अशोक कुमार सर से, कि वो इस फेलिसिटेशन को नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इम्फाल, भारत की जो अष्टसखी राज्य हैं, द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मणिपुर, वहाँ से अशोक कुमार सर दो शब्द अगर आप कुछ कह सके सब नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेके, स्पोर्ट्स को कैसे शिक्षा के सेंटर में रखा जा सकता है, फ्रॉम देयर इटसेल्फ। Okay, thank you very much. Good evening, everyone. So first of all, I would like to give tribute to Dr. Shyam Prasad Mukherjee, and on behalf of National Sports University for honoring this wonderful moment to our university. That's very grateful to us. And so, as we all know, that National Sports University is one of its kind. So, first university in our country, Sri Narendra Modi ji inaugurated this, laid down foundation stone in Manipur, because of the Manipur is powerhouse of the sports. As we all know that Manipur produced 19 Olympians till date. We have only 30 lakh population in our state, and the Olympian produced till date is 19.
So that's why I think Modi ji gave this opportunity to the Manipur and the rest of the country. Great. Yes. And we started 4 departments in our university. Department of Physical Education, Department of Sports Psychology, Department of Sports Coaching, and Department of Sports Nutrition and Physiology. So and that's all for my side. And once again, I would like to thank each and everyone for giving this opportunity to say a few words. But actually, our BC, she could not come because of her health issue. Because recently we faced flood in our university campus. So due to that reason, our health was not in good condition. So she could not make it. Congratulations. Thank you all. Thank you, Dr. Amrita Singh. We also had the great good fortune of felicitating IIT Madras for introducing the Sports Excellence Admission Quota for the academic year 2024-25, becoming the first IIT to offer undergraduate admissions for sports persons, whereby 2 supernumerary seats in each undergraduate program will be provided for Indian nationals, with 1 seat reserved exclusively for female students who have cleared JEE Advanced 2024 and won at least 1 medal in a national or international sports competition within the past 4 years. We have Professor Arul Prakash to receive this felicitation. I request Professor Arul Prakash to address this forum, this gathering. IIT Madras has been on the forefronts of such innovative frontiers. They have recently established a center for music as well. So Professor Kamakoti's leadership, it's really incredible innovations happening down south in Chennai. So, first and foremost, I thank you for Rethink India for kindly inviting us and for felicitating IIT Madras. So, unfortunately, due to personal reason, Professor Kamakoti sir is unable to come. So, myself, Arul Prakash, I am the sports advisor of IIT Madras. And of IIT Madras, he deputed me to receive this award. And some tribute to our Syama Prasad Mukherjee sir for this great occasion. And see, this Professor Kamakoti is having a very, very great vision in promoting the sports. So, out of 56 intra-IIT competitions held in India, our IIT Madras bagged 24 general championships. Wow. On seeing all these sports activities, so Professor Kamakoti sir wants to promote the sports among the community. So therefore, he brought the vision of sports eminence admission, that's called as SE admissions. So he fought in the Supreme Court and everywhere, and IIT Madras is the first institute to implement this sports excellence admission, which has happened this 2004 and 2025. And so I was involved in this admissions where there were 72 applications for this admission. The criteria is they should clear the JEE Advanced exams, and there were about 72 applications among that one, and we gave admissions for 5 best candidates. Those who are unable to join any premier institutes, they got computer science department, which is a dream for based on the sports excellence in our IIT Madras. And so we offered 5 admission seats, both top departments like artificial intelligence and also electrical engineering department. And next year also we also having this organizing this intra-IIT sports. And last year, to make our director happy, last year in 2023 IIT Madras bagged general championship and awards, and also this is among we are getting consecutively 34th time, and this is one of the greatest achievements from our student side. So this is how we have implemented this is each BTech departments will be having 2 seats, that is called as supernumerary seats. This not comes under the regular category of the admission, and 1
to each department for the generic person and one specifically for women candidate. So for this we want to improve our women education, and we also a very good eminent sportsman. So we are implementing this one, and I hope in future all the other IITs also, they promise that we will follow it. So we want to be a front runner, and thanks to our Professor Ramkotis for this great mission. And also we have started a new campus in Zanzibar in Tanzania. So that is also a first of its kind. And all IITs, yes. Yeah. Tanzania. Yeah, we have a satellite campus. Yeah. Good enterprise. But please don't admit the cricketers. Other than have kabaddi, have kushti, the other sports other than cricket. So last thing I want to say is, and also promote to sports for both men and women also. We had director has allocated about 100 crores for starting a new center for sports science and analytics. So where we will do cut-off research and also which collaboration with other institutes also. So these are achievements for that. Thank you. So innovative. Yeah. Thank you once again for Thanks a lot. Thanks a lot. Phenomenally. I would now request Professor Madhuswami Moni, with what a passion he has to add upon the Krishi Sanskriti of Sanatan Bharat. Yeah. We would like to felicitate Professor Moni with Dr. Shama Prasad Mukherjee mentioned 2024 for inducing impeccable integrity and ingenious innovation in public service. He is a former Director General at National Informatics Center and a distinguished technocrat and eminent informatics scientist in the area of e-governance, informatics and agricultural informatics. Sir is someone who can put anyone on fire with his great passion at this very, very advanced stage which we even youngsters are facing it tough. I would request Professor Premrat to hand over this valued citation on Professor Moni. The whole parampara of really building up an Atmanirbhar Bharat, what Professor Moni has exemplified, and his passion is truly terrific. शिष्य तो गुरु का सम्मान करते हैं, पर उस शिष्य के लिए बहुत बड़ी बात होती है जब गुरु उसका सम्मान करते हैं। और ऐसे ही एक शिष्य, ऐसे ही एक एलिजिबल वर्दी disciple, a student is the human in khaki with us, the former Director General of Police from Devabhoomi, Uttarakhand, who really ignited that passion of service in all its पुलिस फोर्स अक्रॉस द नूक एंड क्रैनी। और हम लोग रोज जो टीवी पर देख रहे हैं, लाखों लोग, 75 लाख इस बार की चारधाम यात्रा का आंकड़ा प्रस्तावित है, और किस प्रकार से वो एक एक की सेवा कर रहे हैं तीर्थ यात्रियों की। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ डीजीपी, फॉर्मर डीजीपी अशोक कुमार सर and his transformational, humane and victim-oriented policing as opposed to a coercive colonial design as documented elaborately in Humans in Khaki। और मैं निवेदन करूंगा उनके गुरु प्रोफेसर प्रेमव्रत को कि वो अपने इस वर्दी शिष्य का सम्मान करें इस मंच से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से, क्योंकि वो भी अपने पिता की तरह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक लेगेसी को लेकर आगे बढ़े थे। Sir Ashutosh Mukherjee, so and DGP sir, Ashok sir, we would really like to hear from you. Yeah, please, most welcome, most welcome. Thank you so much. I'm honored by Rethink India Foundation और प्रेमव्रत सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दो कॉन्सेप्ट में बोलना चाहता हूँ, everyone is not in the mood to listen much। पहला जो ह्यूमन इन खाकी के कॉन्सेप्ट की उन्होंने बात की, मेरी किताब है ह्यूमन इन खाकी, खाकी में इंसान, जो आज से 14 साल पहले मैंने लिखी थी। उसमें 20 साल की सर्विस का एक्सपीरियंस है उसमें सारे। बेसिक कॉन्सेप्ट ये कि पुलिस को देख के आम आदमी को डर लगता है। सो दिस इज व्हाट ए ट्रेजेडी ऑफ द सिस्टम। कहीं ना कहीं कॉलोनियल माइंडसेट है, जहाँ पे पुलिस को यूज किया जाता था लोगों को सप्रेस करने के लिए, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए जबरदस्ती, या पुलिस को यूज किया जाता था इंडिपेंडेंस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए, हमारे आज़ादी के आंदोलन को दबाने के लिए। तो वो जो पुलिस का इमेज है, वो जो माइंडसेट है,
जो पुलिस का जो एक इमेज बन गया कि उसको देख करके आम आदमी को डर लगता है, उसको चेंज करने का मैंने अपने पूरी 35 साल की सर्विस में कोशिश की है। और मेरी इतनी firm belief है कि पुलिस को देख के डर बदमाशों को लगना चाहिए, आम आदमी को पुलिस को देख के खुशी होनी चाहिए। इसी सबका कच्चा चिट्ठा है कोई किताब है हिमालय घाटी ठाकुर में इंसान। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं वाइस चांसलर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा बन गया हूँ और मणिपुर वाले हमारे बीच में थे और लकीली मणिपुर से भी आगे है हरियाणा स्पोर्ट्स में मणिपुर से हमारा तो कॉन्टिनेंट शायद 1/3 हरियाणा वालों से होता है। तो मैं इसमें भी एक थीम के साथ आया हूँ और कहीं ना कहीं मेरी अपनी फैमिली उसमें जुड़ी है। मेरी बेटी कुहू गर्ग वो जो है क्लास 5 से बैडमिंटन खेलती थी और वो 7 साल इंडिया टीम में रही, गोपीचंद अकादमी में रही, जूनियर सब जूनियर और सीनियर तीनों उसने एशियन चैंपियनशिप खेली, सीनियर लेवल पे वर्ल्ड चैंपियनशिप भी खेली, वर्ल्ड रैंक 34 तक गया उसका मिक्स डबल्स में और डबल्स में। एक तो मैं 12th लेवल पे बहुत प्रॉब्लम थी कि इसकी पढ़ाई छुड़वाए या खेल छुड़वाए, तो लकीली जो आज IIT चेन्नई ने किया, DU पहले से कर रही है, DU हैज ए स्पोर्ट्स कोटा, तो उस स्पोर्ट्स कोटा में वो 10th के बाद क्लास नहीं गई कभी, 11th 12th तो पूरा का पूरा ग्रेजुएशन शी डिड नॉट अटेंड एनी क्लास, ओनली गिव एग्जाम्स। तो वो स्पोर्ट्स कोटा में उसको SRCC में एडमिशन मिल गया। तो वो शी क्लियर्ड हर ग्रेजुएशन इन 4 years इंस्टेड ऑफ 3, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में उसके टूर्नामेंट आ जाता था या कैंप आ जाता था, नेशनल इंटरनेशनल कैंप। तो जो सीखने की बात है कि कोरोना के बाद उसको एक टाइफाइड हुआ और उसके बाद एक इंजरी हो गई एक ट्रायल में हैदराबाद फुरोगर का, और उसकी नी इंजर्ड हो गया ACL 3rd grade, तो उसको सर्जरी करानी पड़ी। सर्जरी में बोला गया 1.5 साल लगेगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड शी गेव एग्जाम फॉर सिविल सर्विसेज और इस साल वो IPS में सिलेक्ट हो गया। अगर इसको ये डिग्री नहीं मिली हो जो अदरवाइज इम्पॉसिबल थी, बिना क्लास के अलाउ करती है, तो बेचारे UPSC में बैठे ही पास हुए। तो हम एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं हमारी हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में कि भाई पढ़ाई छोड़ो या खेल छोड़ो, ऐसा करना ही ना पड़े। वो थिंग्स आर साइमल्टेनियसली पॉसिबल, तो दोनों उसकी डिग्री भी मिलेगी, स्पोर्ट्स में ही डिग्री मिलेगी और आराम से पास भी हो जाएंगे। तो ऐसा हम ट्राई कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उन्हें आप सबका एक साथ। थैंक्स अ लॉट सर। स्पोर्ट्स और शिक्षा का योग जो कि हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आगे बढ़ा रही है, उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। और अब जो नेक्स्ट हमारा अभिवादन है, जो एक ट्रिब्यूट है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक्सेलेंस इन एजुकेशन एज अ पब्लिक सर्विस साइटेशन 2024, उसके लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा प्रोफेसर उषा वैश्य जी को कि वो आए, डॉक्टर सुरभि की मदर। और यह जो बड़ा स्पेशल एक अवार्ड है, एक रिकॉग्निशन, एक ट्रिब्यूट है हमारी जो भारत की ज्ञान परंपरा की। और मैं सर्वप्रथम निवेदन करूंगा आज की हमारी विभूति प्रोफेसर मैडम मधु किश्वार मैम को, जो न केवल एक एजुकेशनिस्ट के रूप में रही, आज उन्होंने इस पूरे सभागार को आंदोलित कर दिया अपने विचार विनिमय से। प्रोफेसर उषा वैश्य इज आल्सो फैकल्टी विद द दिल्ली यूनिवर्सिटी इन द गार्गी कॉलेज। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैडम मधु किश्वार का अभिवादन, उनको ये ट्रिब्यूट पूरे सभागार की ओर से आपके हस्तकमलों से दिया जाए, क्योंकि मैडम ने शिक्षा को केवल क्लासरूम तक सीमित नहीं रखा, उसको क्लासरूम से भी बाहर, जैसा कि हमने देखा, इतना इंसाइक्लोपीडिक एक्टिविस्ट जो रूपक है वो मैडम किश्वार ने दिया। और एक ज्ञान की परंपरा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्पिरिट में मैडम ने आंदोलित किया। मैं निवेदन करूंगा कि वो स्वीकार करें इस छोटे से साइटेशन को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम से, और अपना और 2 मिनट मैडम के क्लोजिंग रिमार्क्स, उनके आशीर्वचन हम सभी सुनने को आतुर हैं, और जितना संभव हो मैडम हमारे साथ जुड़े रहें जी। If ma'am
लास्ट क्लोज मेरे से अगर क्लोजिंग वर्ड सुनना है तो मेरा मानना है और ये बात इतनी अहम है हमारे समाज के बने रहने के लिए, वो ये है हमारे परिवार न टूटे जा रहे हैं, बुरी तरह से टूटे जा रहे हैं। और इसका बड़ा कारण है कि जो विकृत सोच है वेस्टर्न फेमिनिज्म से आई कि अगर बाहर जाके आप नौकरी नहीं करती, वेज लेबर नहीं करती, आप बाहर से तनख्वाह नहीं लाती तो आप किस काम की नहीं। ये इतना आज की बात नहीं है। मैं जब सोचती हूँ मेरी माँ का जो डॉक्टर बनना चाहती थी पर बच्चे हो गए तो उन्होंने अपना जीवन हमको समर्पित कर दिया। ये कुछ छोटा मोटा काम नहीं है परिवार चलाना। Actually, it is more difficult to run a happy family than to run a corporation. और वो जो ज्ञान परंपरा थी केवल कैसे बना के रखते हैं पड़ोस के साथ, रिश्तेदारियों के साथ, एक्सटेंडेड फैमिली, इंटरजेनरेशनल फैमिली। मेरा मानना है कि यदि हमारे परिवार में बड़े बूढ़ों की जगह नहीं है, दादा दादी नाना नानी की जगह नहीं है, और जो बच्चे के लिए ना कोई चाचा है, ना कोई फूफी है, ना कोई माँ है, सिंगल चाइल्ड फैमिली, 2 कुत्ते पाल लेने हैं, बच्चा एक मुश्किल से करना है, ये we are going to just vanish। हिंदू समाज कम से कम लुप्त होता जा रहा है और हमारी डेमोग्राफी इतनी एडवर्स होती जा रही है क्योंकि हमने बच्चे को जन्म देना, जो मेरा मानना है, मैंने बाय द वे शादी नहीं की, वो बचपन से ही था कि मैं गृहस्थ आश्रम के लिए नहीं बनी हूँ, जैसे बहुत से लोग संन्यास ले लेते हैं या, बट आई डू थिंक कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है सबसे उत्तम अगर है वो गृहस्थ आश्रम है, संन्यास से भी उत्तम। और गृहस्थ आश्रम के स्तर पे ही सन्यासी भी खाते थे और बाकी समाज भी चलता था, और उसकी हमने इम्पोर्टेंस जो खत्म कर दी है। जोमेटो और स्विगी से हमारे बच्चे खाना खाएंगे। आई रियली थिंक दिस इज वेरी सीरियस। और महिला के लिए अगर घर गृहस्थी को नीचा आपने मान लिया और टाइम ही नहीं है उसके लिए, जो स्ट्रेस लिया जाता है, सो आई डोंट थिंक anything in the world is worth it if you don't have a happy, stable family where children feel secure. That's the first thing any society needs to do. और समाज वेस्ट का टूट गया है इस विकृत फेमिनिज्म के चलते। कृपया हम उस दिशा में न जाएं। और जब स्त्रियों से मैं सुनती हूँ what you do, oh I do nothing, I'm just a housewife। अरे इससे बड़ा काम ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए कोई नहीं रहा और उसको इतना डाउनग्रेड कर दिया है। और दूसरा लास्ट मेरी आग्रह है, अभी सर बोल रहे थे कि केरला ने अगर फैमिली प्लानिंग ना किया होता तो देश में नहीं होनी थी। अरे भाई जी, उसी से तो मरे जा रहे हैं। 1 बच्चा 2 बच्चे, वो भी एक 1.5 बच्चा, एक कनाडा में है, एक कहीं दूर, कोई परिवार नहीं, माँ बाप के लिए कोई बने। सर आई एग्री। All I'm saying is Hindu society by accepting this has endangered its very existence. डेमोग्राफी बदली जा रही है, हम माइनॉरिटी की तरफ, और हमें मालूम है कि जो 8-9 बच्चे पैदा कर रहे हैं वो एक हथियार के रूप में अपनी रिप्रोडक्टिव पावर को यूज कर रहे हैं। और हम सोच रहे हैं बड़ी स्मार्ट चीज है, एक ही बच्चा 3 कुत्ते। बहुत बड़ी बात है। कृपया इसकी तरफ ध्यान दीजिए, कृपया इसकी तरफ ध्यान दीजिए। Pay attention to the noblest role that Ishwar gave to women and take it seriously. Believe you me, the best of jobs cannot compare with the satisfaction of creating a happy, stable family
जिसमें बड़े बूढ़ों की भी जगह है। इंटरजेनरेशनल न्यूक्लियराइज हुई फैमिली तो वो लुप्त होती है। दैट्स द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द फैमिली। जब तक बड़े बूढ़ों के लिए, पेरेंट्स के लिए जिस घर में जगह नहीं है, वो परिवार कहलाने लायक ही नहीं है। धन्यवाद। मैडम, एक मिनट आपके साथ एक फोटो लेना चाहता हूँ अपने कैमरे में। है ना, कितनी अच्छी बात कही है मैडम, आप तो नेशनल एसेट हो। आपकी बात अगर हम कुछ 0.1% भी मान ले, देश बहुत प्रगति करेगा, भला होगा समाज का। आपने बहुत पते की बात बोली है। आज केरल भारत से अलग हो रहा है, आज बंगाल भारत से अलग हो रहा है, बहुत सारा यूपी भारत से अलग हो रहा है। हमको बहुत सोचना होगा और एजुकेशन का ये इम्पोर्टेंट पार्ट बनना होगा। कौन सिखाता है हमें ये? बिल्कुल सही में भाई से कैसे रिश्ता बना के रखना है, बिल्कुल। वो कौन सा कॉलेज सिखाता है? बिल्कुल। और पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है कुछ भी सिखाने का। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आया पे छोड़ दिया और फिर गूगल पे छोड़ दिया सारा ज्ञान। अब हम जैसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा प्रोफेसर मधु किश्वार मैम से कि वो डॉक्टर राजुल के गज्जर, जो कि कुलपति हैं गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की, एक ऐसा यूनिवर्सिटी जो कि 200 से